Hello students, this is your English teacher Anuradha Dubey once again before you with question answers of chapter 3 class 12 supplementary reader book with stars. The name of the chapter is Journey to the End of the Earth and the author is Tishani Doshi. The subtitle of this chapter is If you want to study Earth's past, present and future, अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो उठता है वो व्हाट इज अंटार्कटिका एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट इन क्लाइमेटिक डिबेट. तो आप बताएंगे इसका आंसर. अंटार्कटिका इज अ कॉन्टिनेंट इन द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ एंड इट इज द कोल्डेस्ट, द ड्राइएस्ट एंड windiest continent, and it is pristine, it is completely untouched by the human interference. That's why it is very easy for the discoverers and the inventors to do geological studies here. Next is how can we study Earth's past here in Antarctica. तो अर्थ जो है उसके पास्ट को हम अंटार्कटिका में कैसे पढ़ सकते हैं. इसके लिए ऑथर आपको बताता है कि अंटार्कटिका जो है, जो पहले उसी एक जाइंट सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम गोंडवाना था, उसका पार्ट था और बहुत सारे कॉन्टिनेंट भी उसका पार्ट थे. ये बहुत गर्म हुआ करता था जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा था और बहुत सारे फ्लोरा और फाउना को ये होस्ट करता था. लेकिन जैसे जैसे इट स्टार्टेड टू कूल डाउन तो बहुत सारे एनिमल्स का एक्सटिंक्शन हो गया, बहुत सारी स्पीसीज खत्म हो गई, बायोलॉजिकल चेंजेस भी यहाँ पे हुए. नाउ इन इट्स ग्रेनाइट शीट्स एंड इट्स कॉर्डिलरन फोल्ड it holds million year carbon records which can give you authentic study about the earth's past, and we can get a lot of information about earth's history here. That's why it is very easy to study about earth's history here in Antarctica. Next, how is the human impact cause a destruction or disaster to the earth, or how can we study the present of earth here in Antarctica, or what gives us a warning towards our फ्यूचर. तो ये किसी भी तरीके से क्वेश्चन आता है, आपको ये बताना है किस तरीके से जो प्रेजेंट कंडीशंस हैं वो आपको आपके एक फ्यूचर के लिए आपको अलार्म कर रही हैं. तो आपको प्रेजेंट कंडीशंस के बारे में बताना है. तो यहाँ पर यू विल मेंशन द डिबेटेबल इशू दैट इज द ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज दैट द अर्थ इज फेसिंग टुडे. यू विल आप ये भी बता सकते हैं किस तरीके से अंटार्कटिका के सिंपल इकोसिस्टम में और प्रिस्टाइन एनवायरनमेंट में जो छोटे छोटे चेंजेस हैं उनके बड़े इम्पैक्ट्स विजिबल हैं जो आपको वार्न करते हैं कि फ्यूचर में आपके साथ क्या हो सकता है. ह्यूमन इंटरफेरेंस हैज कॉज्ड अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन हियर, सेटिंग बिल बोर्ड्स, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, डेवलपमेंटल वर्क्स, इन ये सब करके इट हैज कॉज्ड अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन टू अर्थ एंड डिसरप्टेड द ब्यूटिफुल साइकिल ऑफ नेचर. और इस सब की वजह से अल्टीमेटली Earth is going to face the repercussions of the deeds conducted by man. Next is what is a student on ice, and why does Geoff Green chose high school students to take to Antarctica. So Students on Ice is an educational program, and a Canadian, Geoff Green, is the head of this program. He decided to take high school students to Antarctica because he thinks that these students are on an age where they can absorb, they can understand, and they are ready to act as well. These students are the future policy makers. So here when they will visit Antarctica, they will realize how much destruction the human being has caused to the nature. They will because they are the future policy maker, in the future they will definitely act and make out some policies in order to save the earth from the disasters of climate change and global warming.
तो इसके बाद एक अगला क्वेश्चन उठता है कि कैसे हाउ द स्मॉल चेंजेस लीड टू बिग रिपरकशंस। एंड फाइटोप्लैंक्टन के बारे में भी कई बार आ जाता है, 2020 के बोर्ड एग्जाम में भी आया था कि हाउ इज फाइटोप्लैंक्टन रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिग चेंजेस इन द सदर्न इंडियन ओशन। तो हम बता सकते हैं कि द स्मॉल एक्टिविटीज कॉज्ड बाय ह्यूमन बीइंग और द स्मॉल चेंजेस can sometimes result in big repercussions. The author takes the example of phytoplankton, which are microscopic one-celled plants, but on these plants depend the entire food chain of the southern ocean. These plants perform the process of photosynthesis and produce food for all the marine animals as well as the birds of this region. But when ozone layer gets depleted, the activities of phytoplankton will also get disrupted, and in result the entire food chain of this ocean will also get disrupted. And the result is that the survival of these marine animals as well as the world will get endangered. तो ये किस तरीके से छोटा सा चेंज जो है वो बड़े चेंजेस तक में रिजल्ट हो सकता है, ये बताने के लिए द ऑथर टेक्स द एग्जाम्पल ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। तो ये जनरल क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस थे जो इस चैप्टर से बनते थे। अब हम चलते हैं कुछ बड़े क्वेश्चंस की तरफ। तो बड़े क्वेश्चन जो निकल के आते हैं, एक तो आपका जो सब टाइटल है उसी को एलैबोरेट करने के लिए आता है कि किस तरीके से अर्थ के पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को पढ़ने के लिए अंटार्कटिका एक सबसे अच्छी जगह है। तो पहले हम अर्थ के पास्ट की बात करते हैं, क्योंकि अंटार्कटिका एक बहुत बड़े जाइंट एमैलगमेटेड सुपर कॉन्टिनेंट से बना है, से टूट के बना हुआ है, जिसका नाम गोंडवाना था। पहले ये बहुत गर्म था, बहुत यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी थी, बहुत ज़्यादा फ्लोरा एंड फौना था, लेकिन धीरे धीरे ये कूल डाउन हुआ और यहाँ पर जो एनिमल्स थे, वूली राइनोज, मैमथ्स और डायनासोर्स थे, ये एक्सटिंक्शन हो गए। उसके बाद इनके बाद मैमल्स की एज आई और फिर उनके बाद और भी चेंजेस आते चले गए। बायोलॉजिकली जो बॉटनी के हिसाब से भी बहुत सारे चेंजेस हुए। तो ये जो सारे जो एक्सटिंक्ट हो गए, उन सब के जो रिकॉर्ड्स हैं, जो कार्बन रिकॉर्ड्स हैं, मिलियन ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स जो हैं, दे आर स्टिल होल्डेड बाय द ग्रेनाइट शीट्स प्रेजेंट हियर इन अंटार्कटिका। तो यहाँ के शील्ड्स में, कॉर्डेलियन फोल्ड्स में आप आज भी मिलियन ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स को पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और इस तरीके से अर्थ के पास्ट को आप बहुत ही ऑथेंटिकली यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद बात उठती है प्रेजेंट के स्टडी की। तो यहाँ पर अर्थ में जब अंटार्कटिका में जब आप जाएंगे और यहाँ के चीज़ों को देखते हैं, आप जब अपने टाइम जोन से अंटार्कटिका के टाइम जोन्स में जाएंगे और आप एक इतना ड्रास्टिक चेंज यहाँ पर देखेंगे, बिकॉज अंटार्कटिका इज अ प्लेस undisturbed by the activities of human being up to a great extent। तो यहाँ पर अभी भी वो चीज़ें नहीं हुई हैं, बिलबोर्ड्स नहीं है, नोटिस नहीं है, आपके कंस्ट्रक्शन वर्क्स नहीं हो रहे हैं, यहाँ डेवलपमेंटल टास्क नहीं हो रहे हैं, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहे हैं, रोड्स नहीं बन रहे हैं। तो इन सारी चीज़ें जो यहाँ नहीं हो रही हैं, जो कि हमारे टाइम जोन्स में, हमारे रीजन्स में हो रही हैं, तो उनके ना होने का इम्पैक्ट आप यहाँ अंटार्कटिका में देख सकते हैं। लेकिन जो धीरे धीरे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ आप कभी कभी चट्टानों का टूटना सुन सकते हैं, एवलांच देख सकते हैं, जो आइस शील्ड्स जो हैं पिघल रही हैं, उनका रिट्रीट होना देख सकते हैं। और ये आपको एक वार्निंग देता है, हाउ योर सर्वाइवल इज ऑल्सो इन डेंजर, हाउ योर फ्यूचर इज ऑल्सो इन डेंजर, एंड दस विल लीड टू द अर्थ फ्यूचर, कि अर्थ के फ्यूचर की स्टडी के लिए अंटार्कटिका कितना इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट द चेंजेस विच ह्यूमन बीइंग इज कॉजिंग इन द नेचर, वी हमें आइडिया ही नहीं है कि कितना ज़्यादा इंटरफेरेंस हमने नेचर के साथ किया है और कितना ज़्यादा चेंजेस जो हैं हम वो ले आए हैं। क्योंकि हमको लगता है कि वो छोटा सा चेंज है, लेकिन ये छोटा सा चेंज कितने बड़े बड़े डिजास्टर्स ला सकता है, हजार्ड्स ला सकता है। किस तरीके से ये एंटायर प्लेनेट को, इसके वाइल्ड लाइफ को, इसके प्लांट्स को,
फॉरेस्ट को एंड इवन द ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल को, लाइफ को कैसे एक्सटिंक्ट करने के लिए थ्रेट कर रहा है, ये इसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। और यही दिखाने के लिए वो आपको एग्जाम्पल भी देता है फाइटोप्लैंक्टन का, कि कैसे एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो है वो उसमें होने वाले चेंजेस, जो ओजोन लेयर के डिप्लीशन की वजह से उसमें जो चेंजेस आते हैं, वो पूरे सदर्न ओशन की फूड चेन को डिसरप्ट कर रहा है। और उस फूड चेन के में डिस्ट्रप्शन आने की वजह से उस जगह पर रहने वाले सारे मरीन एनिमल्स एंड इवन द बर्ड्स, उन सब का जो फूड जो है, उनका जो सर्वाइवल है वो भी खतरे में आ रहा है। और उनका सर्वाइवल जो है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क पे आ गया है। whether they are going to live or not, that will depend on the minimization of the changes that are being occurred। और इस तरीके से अर्थ के स्टडी को करने के लिए अंटार्कटिका जो है वो एक बहुत ही फोकल पॉइंट साबित हो सकता है, जहां पर किए गए स्टडीज बाद में आपको अर्थ से रिलेटेड एनवायरमेंटल स्टडीज करने के लिए, इवन क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में स्टडी करने के लिए भी हेल्प कर सकते हैं। तो ये एक ही क्वेश्चन बनता है। बाकी आप ग्लोबल वार्मिंग पे एक आर्टिकल तैयार कर लीजिएगा जो इस चैप्टर के रेफरेंस में आपको लिखने के लिए आएगा। तो एक स्टैंडर्ड ग्लोबल वार्मिंग का अगर आप तैयार कर लेते हैं आर्टिकल, तो दैट यू कैन ऑल्सो यूज इन योर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। सो दैट वाज ऑल विद इट। आई होप you have understood the chapter very well. You are now able to answer the question from the text, and you will also score very good marks in this text only. Thank you.